Hello everyone, welcome to my channel Out of the Box. And today we have started a Linux tutorial for beginner level to advanced level. In these tutorials we have discussed about the topic of Linux, and uh, this is the outline of the Linux tutorials. So you can see first is the introductions to the Linux operating systems and how to set up the lab and how to download and installation Linux. And in this tutorial we have used the CentOS in Windows. And third is Linux basic commands, Linux test editor, run labels, string processing and finding files, user and group management, file permissions, cron tape, backup utilities, package management, file system and disk management, network configuration and security. So ये जितने भी टॉपिक्स है हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे. तो फर्स्ट वी सी our view of operating systems before Linux operating system. So what is the operating systems? So operating systems is a interface between a computer users and computer hardware. An operating system is a software which performs all basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and outputs, and controlling peripheral devices such as sticks, drives and printers. So this is the basic information about the operating systems, and some popular operating systems included Linux operating systems, Windows, VMS, OS 400, AIX, ZOS, etc. So this is the definition of the operating system is a programs that act as an interface between the users and the computer hardware and control the execution all kinds of programs. So this is the basic information or the basic definition about the operating systems. So this is the hardware. So यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हार्डवेयर, तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो हम यूज़ करते हैं CPU, RAM एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. और इसी हार्डवेयर पे हम इंस्टॉलेशन करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और इसी ऑपरेटिंग पे सिस्टम पे हम जो थर्ड पार्टी कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक ऑफिस हो गया या एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. और जो यूज़र होता है इसी सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करना है तो इस इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करता है इसी के थ्रू होता है. ठीक है. तो आगे हम बात करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, लाइक प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस management, file management, security, control our system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between other software and users. So this is the important function of operating systems, all the operating systems like. So now comes introduction to operating system of Linux. So Linux basically is a open source operating systems like Unix operating systems, and it is based on the Linux kernel, and the first initially released by the Linus Torvalds on September 17, 1991. And it is a free and open source operating systems, and the source code can be modified and distributed to anyone commercially or non-commercially. The GNU. So GNU एक पब्लिक लाइसेंस है जिसके अंडर में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन जो बनते हैं इस लाइसेंस के अंडर में जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आते हैं. So initially is created for the personal computer gradually,
एंड इट इज़ यूज्ड इन अदर मशीन्स लाइक सर्वर्स। इसको हम बेसिकली लाइनेक्स को जो बेसिकली यूज़ होता है, हम जैसे विंडोज़ को यूज़ करते हैं वैसी वो इस टाइप में अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, बट जो इसको यूज़ जहाँ जहाँ होता है वो सर्वर्स में होता है, मेनफ्रेम्स कंप्यूटर में होता है, सुपर्स कंप्यूटर में होता है। सो अभी nowadays Linux is also used in embedded systems like routers, automations, controls, televisions, digital video recorders, and video games consoles, smartwatch, etc. The biggest success of Linux is Android operating system. तो Linux से रिलेटेड Android ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्डर्स और स्मार्ट वॉचेस में भी बहुत सारे जगह इसका यूज़ हो रहा है। So it is based on the Linux kernels that is running on smartphones and tablets. Okay, so जो इसका कर्नल ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है Linux का जो यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ड्यू टू Android Linux has the largest install base of all general purpose operating system, and there is various package generally packaged in a Linux distribution. So एक यहाँ पे हम जैसे जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लिनक्स टॉर्वाल्ड्स 1971 में सितंबर में बनाया था, और एक फ्री एंड ओपन सोर्स है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है हमारे इंटरनेट पे। हम इस सोर्स कोड को यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें कुछ मॉडिफाई करके हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा उस वो जेएनयू के अंडर लाइसेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो आगे हम जो देखेंगे वो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि इस सोर्स कोड से लेके कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो Linux distribution is an operating system that is made of a collection of software based on Linux kernel, or you can say distributions contains the Linux kernel and supporting libraries and softwares, and you can get Linux based operating system by downloading one of the Linux distributions, and these distributions are available for different type of devices like embedded, personal computers, and etc. Android, around 600 plus distributions are available, और some popular distributions की बात करी थी मैंने, वो है MX Linux Mint, Ubuntu, Elementary OS, Manjaro Linux, Zorin OS, Fedora, Debian, CentOS, Kali Linux। सो ये है टॉप डिस्ट्रीब्यूशंस: Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Slackware, Mandriva, Debian, CentOS, Mint, PC Linux OS, Gentoo, Linux Mint, Parrot, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है। तो ये है एक स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स की, कैसे लाइनक्स के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा कोर पार्ट, वो होता है हमारा हार्डवेयर। इस पर हम इंस्टॉल करेंगे लिनक्स कर्नल, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनक्स, एंड जो हमें कंसोल मिलेगा, सेल कंसोल मिलता है। यहाँ पे बेसिकली लाइनक्स जो होता है वो कमांड लाइन पे बहुत ज़्यादा काम होता है, उस पर जीयूआई बेस पे बहुत कम होता है। ठीक है, तो और उसके ऊपर जो भी हमें एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होंगे, ठीक है, और यूटिलिटीज़ रहती है, तो आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कर्नल्स की। तो कर्नल एक जो कोर पार्ट होता है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस वर्चुअलाइज द कॉमन हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर टू प्रोवाइड ईच प्रोसेस विथ इट इज वर्चुअल रिसोर्सेस। दिस मेक्स the process seems at it the sole process running on the machine. The kernel is also responsible for preventing and mitigating conflict between different process, different type of the kernels. ठीक है, तो जो बेसिकली कर्नल जो होता है हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में। ठीक है, और जो भी प्रोसेस जो होती है
जैसे मल्टीपल प्रोसेस होता है हमारी लाइनेक्स में, तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसको भी प्रिवेंट करता है हमारा कर्नल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से जो कर्नल है वो है मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल्स, एक्सो कर्नल्स एंड माइक्रो कर्नल्स। सेकेंड चीज़ होती है सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स। तो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है जेट आर यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो कुछ सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स होती है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। शेल जो होता है वो हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरेक्शंस, तो इंटरफेस टू द कर्नल विच हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कर्नल फंक्शंस फ्रॉम द यूजर एंड इट टेक्स कमांड फ्रॉम द यूज़र एंड एग्जीक्यूट द कर्नल फंक्शन। ठीक है, तो यूज़र के थ्रू जो शेल जो हमारे एक स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, सिंपल जो कमांड पुट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा किसके, कर्नल फंक्शन के थ्रू। हार्डवेयर लेयर की बात करें तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑल पेरिफेरल डिवाइस लाइक रैम, एचडीडी, हार्ड डिस्क और सीपीयूज होते हैं। सिस्टम यूटिलिटी, इट प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर्स। नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे एडवांटेज ऑफ लाइनेक्स। सो लाइनेक्स को यूज़ करने के एडवांटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट जो एडवांटेज ये है कि लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सोर्स कोड इसका इजीली अवेलेबल होता है, कोई भी इससे मॉडिफाइड कर सकता है। ठीक है, एनीवन विदाउट किसी परमिशंस के, क्योंकि जो हमारा विंडो है पैड वर्जन होता है। ठीक है, हमें लाइसेंस जैसे मोस्टली जो भी हमारे कंपनीज जो एमएनसीज होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइनेक्स का ही यूज़ होता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम लगता है। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए सबसे ज़्यादा एमएनसीज में इसका ही यूज़ होता है। अगर विंडोज़ यूज़ करेंगे तो आपको एमएनसीज में लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि इसका एडवांटेज यह है कि ये बहुत ही सिक्योर है। सिक्योर इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जब जिसको सबसे ज़्यादा पता होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वही सबसे ज़्यादा हैक होता है। जैसे विंडोज़ के अभी आपने देखे होता है रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे सारे विंडोज़ पे, ऐसा लाइनेक्स पे नहीं होता है। and it does not mean that Linux is 100% secure, has some malwares for it, but it is less vulnerable than any other operating system. So as compared to any other operating systems, it's less vulnerable operating systems. सो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे आप विंडोज़ में जैसे क्विक हेल या इसेट नोट 32 इस टाइप से एंटीवायरस इंस्टॉल करते थे। तो लाइनेक्स में ऐसी कोई सी भी एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर अपडेशन जो होता है वो ईजी और फ्रिक्वेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इजीली अपना जो सॉफ्टवेयर सारे अपडेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी कमांड होती है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन जो होते हैं कि यहाँ पे आप वेरियस फ्लेवर देख सकते हैं लाइनेक्स के। विंडोज़ में आपको एक ही मिलता है, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर है लाइनेक्स के। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने टेस्ट के अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्रीली अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट्स करती है एंड इस कैपेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। तो 4 फाइल फॉर्मेट जैसे कि विंडोज़ में NTFS 2 टाइप के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उसको सपोर्ट करती थी, बट लाइनेक्स में वेरियस फाइल फॉर्मेट है जो सपोर्ट करती है। इट इज़ द फास्ट एंड ईजी इंस्टॉलेशन होता है फ्रॉम वेब, एंड इट कैन आल्सो इंस्टॉल एनी हार्डवेयर इवन योर ओल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, एंड इट परफॉर्म्स ऑल टास्क प्रॉपरली इवन इफ इट इज़ लिमिटेड स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। अगर आपके हार्ड डिस्क में कम स्पेस है तो आप पर्टिकुलर टास्क को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके लिमिटेड स्पेस में। एंड डिसएडवांटेज ये है कि इट नॉट मच यूज़र फ्रेंडली, कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जैसे विंडोज़ में आप जाते थे फोल्डर क्रिएट करते थे, सारा GUI बेस्ड होता है, यहाँ पे GUI बेस्ड होता है, बट मोस्टली जो काम होता है वो कमांड लाइन्स के थ्रू ही होता है। तो जो इट में बी कंफ्यूजिंग फॉर बिगनर, जो बिगनर लेवल्स के जो है स्टूडेंट्स या पर्सन्स उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट हैज़ स्मॉल पेरिफेरल डिवाइसेस ड्राइवर्स कंपेयर टू विंडोज़, तो इतना कोई ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने विंडोज़ में होती है। हर जैसे माउस के लिए ड्राइवर चाहिए, कीबोर्ड के लिए ड्राइवर चाहिए, तो इस टाइप से ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे।
in there any difference between Linux and Ubuntu? So this is the very important questions according interviews purpose. So yes, this is a difference between the Linux and Ubuntu. तो इसका जो मेन डिफरेंस होता है कि ये तो बेसिकली है Linux फैमिली का, बट फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल. ठीक है, तो लाइनक्स जो बेसिकली है वो किस पे है, लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है. वेर एज उबंटू इज़ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. उबंटू भी ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसका जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेबियन बेस पे है. मतलब जैसे कि जो लाइनक्स जो बनाया गया है तो उसी के सोर्स कोड को यूज़ करके हमें उबंटू बनाया, तो वो उबंटू जो बना है वो डेबियन बेस पे बनाया गया है. ये भी वो फ्री ऑफ ओपन सोर्स है. ठीक है, एंड और इन अदर वर्ड्स लिनक्स इज़ द कोर सिस्टम. ठीक है, जो कोर जो मेन जो है वो लिनक्स सिस्टम पे है, एंड उबंटू जो है वो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. And Linux is developed by the Linux Trojans and released in 1991, and Ubuntu is developed by Canonical Limited and released in 2004. तो हमने फाइल सिस्टम की बात करी थी, तो यहाँ पे वेरियस फाइल सिस्टम होते हैं. तो कंप्यूटर यूज पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा ऑन मीडिया. तो जो डेटा को, मीडिया को, जो भी हमारे सारे डेटा उसको डिफरेंट फाइल सिस्टम में हम लाइनक्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फाइल सिस्टम कैन बी टॉट इंडेक्स और हार्ड डिस्क. तो वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम जो है ext2, ext3, ext4, स्वैप, वीपैट, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे आगे. सो दिस इज़ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनक्स. ठीक है, ये दिस इज़ द बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है लाइनक्स का, कि जो भी डायरेक्टरी होती है, किस डायरेक्ट में किस टाइप की फ़ाइल होती है, किसको क्या परमिशन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है. तो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रूट, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लाइनक्स, दिस इज़ द रूट फंक्शंस. तो बिन के अंदर जो यूजर्स बाइनरी होती है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा. फर्स्ट जो हमने देखा था रूट. ठीक है, तो रूट यूज़र जो होता है वो सब कुछ करता है, उसको सारा प्रिविलेज रहता है. ठीक है, कुछ भी कर सकता है हमारे सिस्टम में रूट यूजर्स. ठीक है, तो एज अ सिंगल फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्ट फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, एंड ओनली रूट यूजर इज राइट टू प्रिविलेज अंडर द डायरेक्टरी. ठीक है, तो रूट नाम की डायरेक्टरी रहती है, उसके अंदर सिर्फ ओनली रूट यूज़र को परमिशन रहती है कि उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन कर सकता है. प्लीज़ नोट दैट रूट यूज़र इज रूट होम डायरेक्टरी विच इज़ नॉट सेम एज अ रूट यूज़र. ठीक है, अगर जैसे किसी डायरेक्टरी के अंदर हमने रूट यूज़र बनाया तो वो एज अ रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी नहीं होती, जस्ट लाइक सेम एज अ रूट यूज़र जो आपको दिख रहा है. सेकेंड जो होगा वो यूज़र बाइनरी फाइल्स होती है. इट्स कंटेन्स बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है. ठीक है, कॉमन लिनक्स कमांड जो यूज़ होते हैं वो सब बाइनरी फाइल्स के अंदर होता है. सिंगल यूज़र मोड लोकेटेड अंडर दिस डायरेक्टरी. कमांड्स यूज बाय ऑल द यूज़र ऑफ दिस सिस्टम्स आर लोकेटेड हियर. लाइक जो सिंपल कमांड होती है वो रूट यूज़र एज अ नॉर्मल यूज़र भी यूज़ कर सकता है. ps कमांड प्रोसेस के लिए, ls कमांड डायरेक्टरी को चेक करने के लिए कितनी फाइल से, पिंग, ग्रैब्स, कॉपी कमांड, दिस टाइप्स ऑफ कमांड जो होती है वो यूज़र्स और रूट यूज़र्स भी यूज़ कर सकता है. सो एस बिन जो होता है सिस्टम बाइनरी फाइल्स. ठीक है, तो जस्ट लाइक बीन और एस बिन ऑल्सो कंटेंट बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है यहाँ पे भी, बट लाइनक्स कमांड इज लोकेटेड अंडर द डायरेक्टरी आर यूज्ड टाइपिकली बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, लाइक जैसे रूट यूज़र होता है, वही इस पर्टिकुलर कमांड को यूज़ कर सकता है फॉर द मेंटेनेंस पर्पस. जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो इस पर्टिकुलर कमांड को नहीं यूज़ कर सकते जब तक उनको रूट के थ्रू जो सिस्टम यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर होता है या रूट यूज़र होता है उसको परमिशन ना दे नॉर्मल यूज़र को, तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता एज अ नॉर्मल यूज़र. बट एज अ रूट यूज़र, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट कैन बी यूज दिस पर्टिकुलर कमांड. etc के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती है.
ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स जो होती है resolve.com config या logrotate.configs होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप इज यूजल जो भी सेल स्क्रिप्ट होती है वो etc के अंदर होती है। फिफ्थ वन इज डिवाइस फाइल्स। डिवाइस फाइल्स के अंदर मतलब जो भी टर्मिनल्स रिलेटेड इंक्लूडिंग USB और एनी अदर डिवाइसेज जो अटैच रहते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं डिवाइस फाइल्स के अंदर। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो होता है इट कंटेंट्स ऑल अबाउट दी, जितने भी प्रोसेस होते हैं सारी इन्फॉर्मेशन POC नाम की डायरेक्टरी के अंदर होती है, जिसके अंदर जस्ट लाइक कि POC PID क्या है, प्रोसेस ID क्या है, इसकी अप टाइम कब है, टेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होता है। वेरिएबल के अंदर कि वर स्टैंड फॉर द वेरिएबल फाइल्स, जितने भी वेरिएबल फाइल्स रहते हैं वो इसके अंदर होते हैं बी फाउंड अंडर दी डायरेक्टरी। दिस इंक्लूड सिस्टम ब्लॉक फाइल्स हो गई है या पैकेज या डेटाबेस फाइल होती है, ठीक है, ईमेल्स की फाइल्स होती है या प्रिंट की जो भी हमने किया है उसकी फाइल्स होती है, लॉक फाइल्स होती है, टेम्पररी फाइल्स होती है, क्रॉस रिबूट्स जो भी टेम्पररी फाइल्स होती है सारी वेरिएबल्स फाइल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट वन जो होती है टेम्पररी फाइल्स, ठीक है। डायरेक्टरी डेट कंटेंट्स टेम्पररी फाइल्स इज क्रिएटेड बाय सिस्टम्स एंड यूजर्स, ठीक है, एंड डिलीटेड व्हेन द सिस्टम, मतलब कि जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं एज अ सिस्टम्स एंड यूजर्स के थ्रू, तो वो जब तक रहती जब तक सिस्टम रिबूट ना होगा, रिबूट होता है तो टेम्पररी फाइल्स हट जाती है। नाइन्थ वन इज यूजर्स प्रोग्राम्स फाइल्स। सो यूजर्स प्रोग्राम्स फाइल्स में जो बेसिक्स कमांड्स होते हैं या लाइक बोल सकते हैं सोर्स कोड फॉर द सेकेंड लेवल प्रोग्राम्स, यूजर बीन्स कंटेन बाइनरी फाइल्स एंड इट कांट फाइंड यूजर इन एस बीन या अंडर द बीन, लुक अंडर द बीन, फॉर एग्जाम्पल AT, AWK, CC, LAS, SCP कमांड्स होती है। And has been contains binary file system administrator, you can't find system binary file in SB, so for the file is किसके अंदर होती है TD, con, SSD, यूज़र DLC है। तो यूजर्स प्रोग्राम्स के अंदर दिस वेरियस कमांड जो अवेलेबल होते हैं यहाँ बहुत सारे हैं, यूज़र लाइब्रेरी हो गया, यूज़र लोकल हो गया, बीन के अंदर, तो इस टाइप से जितनी फाइल्स होती है वो यूज़र प्रोग्राम्स के अंदर पाई जाती हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर जो होता है बेसिकली जो हम यूज़र्स बनाते हैं तो यूज़र की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर होती है। लाइक कि मैंने जो नाम का यूज़र बनाया तो होम के अंदर जो नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, और निकिता नाम का यूज़र बनाया तो निकिता नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा। वो जो बूटिंग फाइल्स होती है बूट लोडर्स की, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो एक बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर होती है, जिसमें हमारा कर्नल्स, VM लाइनर्स, ग्रब फाइल्स होता है, सब कुछ इसके अंदर रहता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स अवेलेबल इन बूट फोल्डर्स। नेक्स्ट वन जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है, लाइब्रेरीज फाइल्स कंटेंट दैट सपोर्ट द बाइनरीज लोकेटेड अंडर एस बीन के अंदर, एस बीन के अंदर होती है, तो सारी बाइनरी फाइल्स इसके अंदर अवेलेबल होती है लाइब के अंदर। ऑप्शनल फाइल जो होती है OPT के अंदर जो उस टाइप की फाइल होती है जो कि हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो सारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जितनी फाइल्स होती है सारी OPT के अंदर मिलती है। MNT डायरेक्टरी जो होता है जो भी हम फाइल माउंट करते हैं या डिस्क को माउंट करते हैं या कोई बाहर से हमने लाइक एक पेन ड्राइव लगाई उसको माउंट करना है तो हम MNT के अंदर जो माउंट कर सकते हैं। मीडिया रिवल्स एंड मीडिया डिवाइसेस जो होती है लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मीडिया नाम की डायरेक्टरी में होती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शंस कवर किया है लाइनक्स के बारे में, तो आगे जो हमारा जो आउटलाइन था उसके अनुसार चलेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है कि हमें लाइनक्स के लिए एक लैब, प्रैक्टिकल के लिए एक लैब सेटअप करनी है, तो लैब को कैसे सेटअप करते हैं, हमें क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली जो यूज़ करेंगे वर्चुअल बॉक्स का यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा किसको हम कैसे यूज़ करते हैं। उस पर हम जो फ्लेवर यूज़ करेंगे, दिस इज़ द वर्चुअल बॉक्स, तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पे हम जो लाइनेक्स का जो फ्लेवर यूज़ करेंगे वो सेंटोस को यूज़ करेंगे, क्योंकि आने वाली कंपनी में ज़्यादातर यूज़ होता है रेड हैट एंड सेंटोस, बट आई विल प्रेफर सेंटोस इज़ बेस्ट। तो इसको हम विंडोज़ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लैब सेटअप देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।